বর্ণনায় শিখতমিয়া কে বর্ণনায় শিখতমিয়া
belai ka hambai belai kha to kai sinor sabe khar ma bagi phai tab kai sai hai sini bus kango singbai baksa phai manjak phai ka sub zonal chairman borom ganang apon de burma phai sing borno lam sogoi borno borom rina legnai risaroi tai boni yaglo no borom ranai sini joint chairman sub zonal chairman sini Rakesh De Burma bono sing borom rina nai tai boni yaglo Lemon De Burma social worker bono sing phadi borom rina le na phadi tau tai bu so belai ka hambai bor sing bebak sa phai malai phika tai manja phika sini tournament no nai na bagai TSL 2024-2025 and welcome back once again after the break. So tau te bung song te sai nai sing sini tournament chengna baka sing thang lai phinai tournament no belai kan nai to khlai sini dignitary rock te adom song phai manjak phai ka sing bai baksa te aba hai kan belai ke nai to tournament tini mathung jagi tongo Mandai Stadium and tau te bung song padi ngai tini nai lai nai te sai nai break ni yagulo West Vikings versus South Lions. South Lions kene score khaye sekangai to tai West Vikings tabu sak jora kaisa pono score khai manya ko abani bagai ta to boxom black and to tournament tini nong ne buskang phungjak tongo Mandai Stadium ta to boxom no ragawon nai mano singo live TTAADC ni official page te aba ikeno black and to khai tini tournament phungjak tongo tai TTADC hapano belai ka hambai maro tam ni himba asaksa nai to kaisa tournament kaisa league singno tuwi phunogere paika tai aba haikeno live first time ever Tripro ama haike phunojagi tongo so sing TTADC ne hapangno belai ka hambai maro belai ke singno nai to khlai awa haike tournament singno Punuka tai mathungnani thungnani tai sini sikla chalairo tai bo kusu kotorang ei batai manani rasamung musamungo simi aphiaba thungmung abo digir go bor sno subai tongo abani bagai borna hambari gulbe tabo clear change West Vikings dibagatage Rakesh De Burma 6 number player bo bisingo hapka tai abakan 75 number bo phatro nongkhorka. And so, sini second half starting tonight. Our kickoff Klairaka, tai abahikano Changleka sini tournament. They will shine high after the break. And so, belake night to play tini all the tournament. Thungzagi tongo Mandai Stadium. चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मांदाई स्टेडियम में। बहुत ही धुआंधार मैच यहाँ पर, जिस तरह से धूल की आंधी उड़ी हुई है मैदान पर, मैदान में उस खिलाड़ियों ने भी धूल उड़ाई है आज साउथ लायंस ने। तो क्या वेस्ट विकिंग्स अब तक जो करती आ रही है वो प्रदर्शन आखिर तक का लुत्फ उठाइए और मजे लीजिए कि वेस्ट विकिंग्स क्या चकदे फट्टे कर सकती है आज, क्या भंगड़ा पाएगी आज वेस्ट विकिंग्स। ये लंबा शॉट यहाँ पर मौका देखिए, डिफेंस यहाँ पर शायद छोटी सी छूट, नहीं कोई मौका नहीं। यहाँ पर एक प्लेयर चेंज हुआ है, अभी रकीत को उतारा गया है, रकीत दे बर्मा। क्या कोई सोची समझी तरकीब है कि टीम में कुछ बदलाव करने से टीम के हालात बदल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हैप्पी ने और बितेन ने जिस तरह से 2 गोल दागे हैं, काबिले तारीफ। यहाँ पर कॉर्नर शॉट मिला है, वेस्ट विकिंग्स को उठा के मारे, नीचे गई है गेंद, 10 नंबर के खिलाड़ी थे और अच्छा डिफेंस। यहाँ पर सीधा शॉट करेंगे वो, नहीं, वहां पर हॉस्टल की तरफ बढ़िया शॉट। वहां पर खान पान की व्यवस्था भी है बॉल के लिए, तो मैदान पर ध्यान लगाइए क्योंकि आज का मैच बहुत कुछ साबित कर देगा कि साउथ लायंस पे कितनी पावर हाउस जमी हुई है। वाकई फर्स्ट हाफ से पहले भी बहुत पावर थे इनके अंदर जो इन्होंने दर्शाया है, लेकिन ये पावर आखिर तक ले जानी है इनको, क्योंकि ग्रुप ए में इस टीम को अगर अपनी बढ़त बनाकर रखनी है तो पॉइंट्स टेबल में उनको और गोल करने होंगे। 4 पॉइंट से आगे जाना है उनको। छोटे छोटे बच्चे स्कूल के देखिए किस तरह से मैदान पर आ रहे हैं। इसे फुटबॉल लवर्स नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। तो आप धन्यवाद उस जो प्रतिष्ठान है TTADC का, उसका आप क्यों नहीं कहेंगे धन्यवाद। और मौका देखिए वहां पर सौरभ की तारीफ
कि कसीदे पड़े जाएंगे। इस मैच जब खत्म होगा पूरा टूर्नामेंट, सौरभ त्रिपुरा का कसीदा पढ़ा जाएगा, क्योंकि वो बंदा अकेला था उस साउथ लायंस में जो रक्षक की तरह भूमिका निभाई है यहाँ पर, लेकिन वेस्ट विकिंग को रोकना बहुत मुश्किल, क्योंकि बहुत अच्छी टीम है सौरमिता। और ये रफ्तार देखिए सौरमिता, फिर से साउथ लायंस किसी तरह से भी पीछा। हैप्पी ऊंचाई जीने भरा इनका भी मौका, वो मौके की तलाश में कि एक आध गोल और दाग दे, पॉइंट्स टेबल में उनको कुछ पॉइंट्स मिल जाए। क्या ये हालात अभी क्या होंगे? जीने अच्छी डिफेंस उछा के खेल दिया उसको, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या वेस्ट विकिंग्स यहाँ से उठा पाएगी इस बॉल को साइड लाइन तक, और यहाँ पर अच्छी डिफेंस। देखिए ये होता है मैच, आज का मैच सबको याद रहेगा, क्योंकि ये नहीं कि यहाँ पर 2-0 है, बल्कि यहाँ इसलिए क्योंकि वेस्ट विकिंग्स जिस जगह खड़ी है अपने पॉइंट टेबल में, उसको मात देना साउथ लायंस के लिए, क्योंकि अमित को चकमा पहुंच जमाते अपोजिट त्रिपुरा साउथ लायंस के बखूबी अपना प्रदर्शन निभाए। हैप्पी ऊंचाई, बितेन शक्ति त्रिपुरा, ये सब प्लेयर है, और ये त्रिपुरा को प्रदर्शित कर रहा है आज की फुटबॉल किस मात्रा में उसका लेवल ऊपर की तरफ गया है, क्योंकि टीटीएडीसी के जितने भी लोग हैं जिस गेम को चला रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। और यहाँ पर देखिए गेंद डी बॉक्स के अंदर, क्या मौका? जी हाँ, 11 नंबर नेथनियल चौक गए। अच्छी डिफेंस, मौका था नेथनियल के पास, वहां पर 49 नंबर के जर्सी थे कुमार देवर्मा, उनको दे सकते थे, तो कुमार देवर्मा को पास करना चाहिए था सौरमिता। यहाँ पर छोटे छोटे पासेस, बिल्कुल ये छोटे छोटे पासेस बड़े काम आते हैं। अगर आपका टीम वर्क अच्छा हो, अगर आपकी टीम के साथ अच्छे बॉन्ड हो, सही तरह से उपयोग किया जाए बॉल का, तो डेफिनेटली आप एक गोल कर ही सकते हैं। एटलीस्ट एक गोल, क्योंकि वेस्ट वाइकिंग से हमें बहुत उम्मीदें हैं। आप देख सकते हैं फुटबॉल लवर्स, फुटबॉल फैंस, ओ वाओ, इट वाज अ शॉट बट फुल्ली एग्रेसिवनेस शो हो रहा है इसमें। वो जो शॉट है वो आपको टारगेट बेस रखना है। अगर आप टारगेट बेस ही नहीं रखेंगे तो वो बॉल कहीं चला जाएगा, आपको शायद पता भी नहीं चलेगा। सो द थिंग इज, आपको वो टारगेट बेस रखना है, टारगेट आपको सही रखना है, सो दैट आपका जो गोल वो एक्चुअली गोल पोस्ट तक जाए। आप कहीं भी गोल फेंक दे रहे हैं, दैट डजंट मीन कि हाँ आप ट्राई कर रहे हैं। ट्राई कीजिए, सही तरह से कीजिए, अपॉर्चुनिटी मिले उसको लीजिए। एक अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी है ऑलरेडी, पर आपको पछताना नहीं है, आपको रिग्रेट नहीं करना है, आपको और एक बार ट्राई करना है सही तरह से। और यहाँ बहुत कम के कारण वह चूक गए वंस अगेन। क्या लगता है मिथुन जी, क्या आज वेस्ट वाइकिंग्स का दिन नहीं है? मतलब मुझे जहां तक लगता है आज वह ट्राई कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आज उनका दिन है ही नहीं। सौरमिता देखिए नेथनियल जिस तरह से अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं ना, पहले मैच में दिखाए थे, कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन ऐसी टीम है आप अंत तक देखिए 40-40 मिनट का खेल है, और आप इस 40 मिनट में अभी जो 40 मिनट शेष बचे हैं इसमें देखना है कि नेथनियल और किरीज एस्ट्रोमैन तंबी और यहाँ पर बिलास देवर्मा किस तरह का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि ये वो टीम है जो इन 3 तंबू के बम्बू पे अटकी पड़ी है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आज ये खेल रहे हैं जो सोवा जी जो हमारे साथ पहले थे, सोवा पहले मैच में, वो आज नहीं खेल रहे हैं, पर नेथनियल जो खेल रहे हैं, किरीज एस्ट्रोम जो खेल रहे हैं, उनके साथ उनके ऊपर ये नजरें टिकी हुई हैं। हमारे दर्शकगण आप देख सकते हैं आज इतना खूबसूरत एक तो स्टेडियम मिला है हमें, साथ ही साथ इतने अमेजिंग ऑडियंस मिली है हमें जो फुटबॉल को इतना प्यार दे रही है। धन्यवाद देना चाहते हैं फिर से टीटीएडीसी को इतना अमेजिंग इनिशिएटिव लेने के लिए, फुटबॉल को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन त्रिपुरा ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहां दर्शकगण फुटबॉल को ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी देख रहे हैं। यहां फिर से एक चूक, फिर से एक मिस। देखिए यहाँ पर अगर कुछ ऑफसाइड भी नहीं था, आप इस बॉल को कोशिश कर सकते थे, और यहाँ पर जो शॉट था वो बहुत लॉन्ग पास था, जिसके कारण से एन तंबी चूक गए वहां पर। और सौरभ जो है ना, वो ऐसे बंदे हैं वहां पर अपने गोल पोस्ट के अंदर, वो कुछ भी कर सकते हैं अंदर से कर सकते हैं। पर वेस्ट वाइकिंग्स के जो प्लेयर्स हैं ना, आप देखिए मिथुन जी, जैसे नेथनियल जी की जो आप बात कर रहे हैं, किरीज एस्ट्रोम, दे आर अमेजिंग। ये देखिए ये मौका, और देखिए सौरभ त्रिपुरा, पूरी त्रिपुरा को अंदर समा के रखे हैं अभी। सौरभ चौकन्ने हैं, वही चौकन्नापन दिखाना है वेस्ट
वाइकिंग्स के जो प्लेयर्स हैं उनको ये चौकन्नापन आपको दिखाना है, ये फोकस आपको दिखाना है, क्योंकि आपका जो बॉल है वो मिस हो रहा है, वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार। आप जो मिस्टेक कर रहे हैं, मिस्टेक से सीखिए, गलतियां दोहराइए मत, यही बार बार ये कहना है। हल्दी वाला रंग चढ़ेगा क्या अभी दोबारा से सबके चेहरे पर? यहाँ पर वो सब्जी बनाई है जनाब, जिसमें हल्दी की पूरी मात्रा डाली हो। और यहाँ पर जिस तरह से अभी वेस्ट विकिंग्स अगर अच्छे छोटे पास नहीं खेलती है, अपनी टीम को अच्छे पासेस नहीं देती है, तो मुश्किल होगा। यहाँ पर रफ्तार पकड़ ली है, देखते हैं क्या पास सही होता है। जी हाँ, देखिए 11 नंबर और ये 11 नंबर के खिलाड़ी वेस्ट विकिंग्स के, और नेथनियल ने वो कर दिखाया है। और नेथनियल की जितनी तारीफ की जाए कम है। हम जानते थे, देखिए कहते कहते जुबान पर वो बात आ ही गई कि आखिर तक का इंतजार अभी मत कीजिए, नेथनियल अभी जिंदा है। जी हाँ, जुबान की बल्ले बल्ले हो गई है, मतलब क्या बात, जिनसे उम्मीद थी उन्होंने कर दिखाया। वाओ, व्हाट अ गोल, व्हाट अ गोल। जो उम्मीदें हैं उसी के हिसाब से नेथनियल जी ने एक और गोल कर दिया है, और क्या पता एक और गोल हो जाए और वो टाई कर दे। हमने पहले वाले मैच में भी देखा था मिथुन जी कि लास्ट मोमेंट में 2 गोल्स हमारे वेस्ट वाइकिंग्स ने ली थी और टाई हो गया था वो मैच। अभी भी क्या टाई हो जाएगा? अगर टाई हो जाएगा, मुझे तो लगता है टाई हो जाएगा, बिकॉज वेस्ट वाइकिंग्स दे आर डूइंग ग्रेट। और अगर साउथ लायंस को जीतना है तो डेफिनेटली अब गोल डिफरेंस उनको बढ़ाना होगा, 1 से 2 गोल और लेने होंगे उनको, सो दैट गोल डिफरेंस बढ़े और उनके जीतने की संभावनाएं बढ़े। आप देखिए जरा, देखिए वेस्ट वाइकिंग्स किस तरह से बॉल ले रहे, और यहाँ एक फिर से मिस, ये एक बहुत बड़ा मिस था। जी बिल्कुल सौरभिता, ना तो समुंदर मिला, ना समुंदर में जहाज मिला, कुछ ना मिला, बस एक आउटलाइन के बाहर बॉल मिला, लेकिन कुछ नहीं खाते में। लेकिन अभी भी प्रदर्शन उतना ही उमदा साउथ लायंस का। लेकिन वेस्ट विकिंग्स ने जिस तरह से अपना पासा पलटा है उसको देखना पड़ेगा। नेथनियल, उसके पास आप डिफेंस तगड़ा कीजिए अपना साउथ लायंस, क्योंकि अभी डिफेंस तगड़ा नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो बाहर से एक्टिव होके आए हैं अपने कोच के साथ बात करके, क्योंकि उनका प्रदर्शन पहले भी ऐसा था, हमने जितने मैचेस देखे आखिर में वो जाग जाते हैं, वो ऐसे खिलाड़ी हैं। आखिर में जाग जाते हैं, या कह सकते हैं कि सुनामी के पहले जो शांति है वो शांति पहले दिखाकर फिर सुनामी ले आते हैं, वैसे है वेस्ट वाइकिंग्स। आप देखिए जरा, अब उनका पूरा रूप, पूरा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और आई एम वेरी डाउटफुल कि अभी शायद टाई हो सकता है, या क्या पता वह जीत भी सकते हैं। वहीं साउथ लायंस दे आर डूइंग अमेजिंग, पर अब शायद उनको गोल डिफरेंस बढ़ाना चाहिए, अब शायद उनको ध्यान देना चाहिए उनके डिफेंस पर, साथ ही साथ उनके अटैकिंग सिस्टम पर, बिकॉज अगर आप डिफेंस स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो वेस्ट वाइकिंग्स और एक गोल नहीं ले पाएंगे और आपके चांसेस रहेंगे जीतने के। और आप अगर एक और एक गोल ले लेते हैं तो गोल डिफरेंस आपका बढ़ जाएगा और आप जीतने के चांसेस आप बढ़ा लेंगे। बिप्लब दब्बरमा जिस तरह से राइट विंग को संभाले हुए हैं, अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर, अच्छा कैरी फॉरवर्ड है इनका, अच्छे जा रहे हैं आगे की तरफ। अगर इसी तरफ आगे की तरफ जा रहे हैं, और वो गोल वहां पर हो सकता था अगर वो अच्छा पास होता, लेकिन वहां पर प्लेयर मौजूद नहीं थे। लेकिन देखना है अभी कि गोल को कितना, दोनों गोल कीपर हैं वो कितना रक्षा कर पाते हैं, क्योंकि अभी 10 के 10 20 खिलाड़ी जो मैदान के बीचों बीच मौजूद है, वो काफी खतरनाक एग्रेसिव है, पूरे फुल पावर हाउस में है। हमारे पीछे भी पावर हाउस है और पूरा पावर यहाँ पर जनरेट हो गया मैदान पर, और देखना है अब वेस्ट विकिंग्स के अंदर वो पावर ज्यादा जाता है और या साउथ लायंस के कितना केवी का ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें। हम आप ऐसा नहीं कह सकते हैं मिथुन जी, जितना पावर हमारे प्लेयर्स में है, आज दर्शकगण को देखकर मुझे और ज्यादा पावरलिंग लग रहा है, बिकॉज आप दर्शकगण देखिए आज स्टेडियम में चारों ओर ऑडियंस इतना सपोर्ट कर रही है फुटबॉल को। आई एम लाइक सरप्राइज, इतना बेहतरीन ऑडियंस हमें हर जगह नहीं मिलता है। जी बिल्कुल, बूस्ट अप करने के लिए यही चाहिए, अगर प्लेयर का मनोबल बढ़ाना है तो उसमें दर्शक चाहिए, और वो दर्शक आज मानदाई में है। और मानदाई के दर्शक कितने फुटबॉल लवर्स है वो देख के पता चल रहा है। ये विश्वास जता के रखिए फुटबॉल पर, एक दिन ये त्रिपुरा के प्लेयर उच्च कोटि लेवल में अपना मैच खेलेंगे पूरे भारत में। बिल्कुल उच्च कोटि लेवल में मैच भी खेलेंगे, जिताएंगे भी इंडिया को। एंड साथ ही साथ अभी के लिए फिलहाल आई एम डाउटफुल। देखिए जरा, दोनों गोलकीपर्स अभी चौकन्ने हैं, सतर्क हैं, एंड अब उनका जो नजरें हैं ना वो बॉल से हट नहीं रही है। और अभी आई एम वेरी श्योर कि सौरभ जी अगर थोड़ा ध्यान दे तो वेस्ट वाइकिंग्स और एक गोल सकते थे। देखिए नेथनियल, फिर से नेथनियल के पास वो मौका था, लेकिन डिफेंस इतना तगड़ा था
चूक गए वहां पर गिरीश एस्ट्रॉम, वहां से अच्छा शॉट खेले थे गिरीश एस्ट्रॉम, लंबे कद के खिलाड़ी हैं गिरीश एस्ट्रॉम, बिल्कुल। और जिस तरह का उन्होंने पास दिया था उस पास को अगर काम पे लगा लेते तो अभी मामला इक्वल का हो जाता। बिल्कुल, आप देखिए जरा किस तरह से ये पूरा पूरा मैच पलटी खा रहा है। आई मीन वाओ वाओ, ये मैच सच में पिछले जो मैच है वो उसने इतिहास रचा था, शायद आप जानते हैं, शायद आपको याद है वो ऐतिहासिक मैच जिसपे 0-0 में ही टाई हुआ था। ये एक ऐसा मैच है, शायद ये भी एक इतिहास रच सकता है इस स्टेडियम में। सौरमिता सब कुछ रणनीति के तहत है। उधर रिप्ले देखिए आप जो हमारे लाइव देख रहे हैं, और देखिए किस तरह से वहां पर डिफेंस था, छाती में लगी गेंद और वहां से बॉल गोल पोस्ट आउटलाइन के बाहर जाती हुई, और यहाँ पर ये मौका तो चूकना नहीं चाहिए था, लेकिन देखिए डिफेंस की तारीफ साउथ लायंस की यहाँ पर। जी मौका एक्चुअली उन्होंने एक चीज मिस किया है, उन्होंने टारगेट थोड़ा नहीं देखा। नेथनियल जी के आप इस रिप्ले में आपने देखा होगा, उन्होंने सही जगह में लगाने की कोशिश की थी, बॉल को सही जगह में फेंकने की कोशिश की थी, पर वो बॉल गया नहीं। कह सकते शायद आज नेथनियल जी किसी और को देखकर आए थे, इसीलिए शायद उनका दिन नहीं बन रहा है आज। You know what? Actually, Nathaniel really putting pressure on the South Lions today, because after the first half, you know, they've been doing really great aggressive gameplay has been showcased by the West Vikings now, and this is a dangerous situation. This could have been a goal, but no, it is an unfortunate opportunity. You know, the West Vikings really not being able to, you know, just go through the previous goal that has been shot by the team of West Vikings. Such a lovely shot it was, absolutely straight into the box, and the player quickly pushed the ball into the box, into the goal post. मिल्टन जी ये स्पाइक को देखिए किस तरह से यूज किया था, उस गोल में साइड स्पाइक का यूज किया था बाहर की तरफ, और हल्का सा पुश करके गोल पोस्ट की तरफ डाल दिया। Just in case he missed that that opportunity, this would have been a massive disaster for the West Vikings. But you know how they are really prepared, and they shot it really well. Quickly, played the leg between the player and scored the goal into the goal post. What a match it is! What a lovely shot it was by the players there. So this is how the game actually changes every second, every moment. And West Vikings they've been known for this kind of situation. Even in the previous match in Lefunga, you see, even at the end of about 2 goals were scored in the last 10 minutes. So they got 3 each by with the Onokuti Challengers that time, and so such a lovely match it was. They many actually thought that the West Vikings will not win the match, but they went with tie, and so it was such a performance during that time. And today also I think they're going to do the same kind of a gameplay. Maybe they gave some opportunity to the South Lions as of now, but they really knows to play the ball at the end of the game, and so this is the kind of strategy they have, and so they have already made changes in the player. We have seen many players change in the match in Lefunga Stadium. So I guess this time also probably they're going to do the same kind of strategy. Maybe they will put in more new players who are actually yet having the stamina to run between the balls and play the ball really with a good performance. And so I think this is really nice. Soromita, you know what? I think the West Vikings really understands the game, when to play, when not to play. True, that's really true, because जब भी वेस्ट वाइकिंग्स आते हैं वह पहले में थोड़ा शांत रहते हैं, देखते हैं, परखते हैं अपने ओपोनेंट टीम को, उनकी पूरी स्ट्रेटजीज जानते हैं, तब जाके फिर गोल करना, धड़ाधड़ गोल करना शुरू करते हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि मे बी अभी फिलहाल इस गेम में साउथ लायंस को थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अगर अभी आप मेहनत नहीं करेंगे तो शायद वेस्ट वाइकिंग्स टाई के साथ साथ आगे भी बढ़ोतरी भी कर सकती है, क्या पता जीत भी सकती है। तो साउथ लायंस आपको अभी सच में मेहनत करनी चाहिए, आपको जो गोल डिफरेंस है वो बढ़ाना चाहिए। अगर आप अभी गोल डिफरेंस नहीं बढ़ाएंगे तो शायद वो समय आपको देंगे ही नहीं वेस्ट वाइकिंग्स के प्लेयर्स, क्योंकि अभी उनका जो
मोड है वो है पूरा प्लेइंग मोड, और इस प्लेइंग मोड में उनका पूरा एनर्जी वो पूरा दर्शा रहे हैं, क्योंकि अभी सेकंड हाफ है, अभी नहीं करेंगे तो और कर नहीं पाएंगे। तो ये पूरी तरह से उनका एक स्ट्रेटेजी है कि अभी शायद ये गोल हो सकता था। तो या दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, बट वही बात है कि आपको वो चांस देंगे नहीं वेस्ट वाइकिंग्स। तो साउथ लायंस अभी आपको ट्राई करना ही चाहिए कि गोल जो है, गोल डिफरेंस जो है वो आपका बढ़े। वहीं वेस्ट वाइकिंग्स, अगर आप देख रहे हैं, वेस्ट वाइकिंग्स को मैं कभी नहीं बोलूंगी कि वो वीक टीमों में से है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है हमारे इस टूर्नामेंट के, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि स्टार्टिंग में किस तरह से मैच को खेलना है, किस तरह से देखना है, किस तरह से कंपटीशन लाना है और यहाँ किस तरह से गोल करना है। और आप देखिए लगभग 2-3 बार चूक गए हैं, पर दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। मिथुन जी देखिए साउथ लायंस को आज जैसे तैसे भी आज आपको मैच जीतना है, क्योंकि नॉर्थ पैंथर्स के भी 2 गेम बचे हुए हैं। अगर वहां पर नॉर्थ पैंथर्स ने अपना काम कर गया ना, तो आप टेबल में नीचे आ जाएंगे अंक तालिका में, क्योंकि पॉइंट्स आपको अगर लेने हैं तो इस आज मानदाई के स्टेडियम से आपको पॉइंट्स कमा के लेके जाने हैं। लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन आज वेस्ट वाइकिंग्स ने किया है ना, वो काबिले तारीफ। जिस तरह वो हाफ टाइम के बाद हमेशा पता नहीं कौन सी एनर्जी बूस्ट बाहर से होके आते हैं, क्या लेके आते हैं, उनके लगता है उनके अंदर एक अलग सा जादू छा जाता है मैदान पर। और जिस तरह से गोल किया है ना, पहला गोल नेथनियल ने, वो बहुत ही तारीफ के काबिल है। लेकिन अभी मौका देखिए साउथ लायंस को कोई मौका नहीं मिल रहा है यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए। डिफेंस तगड़ा कर दिया इन्होंने, और ये भी अच्छी उछाल यहाँ पर, बहुत ऊपर खेला, हेड की कोशिश, लेकिन बॉल ज्यादा बाहर चली गई। तो यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, और वेस्ट वाइकिंग्स ने अपने 28 नंबर के प्लेयर को अंदर बुला लिया है, राकेश जमातिया। राकेश जमातिया पर 28 नंबर को अंदर कर दिया है और 19 नंबर को बाहर, यानी सुमंत देवर्मा जो कैप्टन है वो बाहर आ रहे हैं अभी। तो इस तरह का जो अगर प्रदर्शन आप देख रहे हैं, ये रणनीति होती है वेस्ट वाइकिंग्स की, ये रणनीति कारगर भी होती है इनकी आखिर में, और ये हमेशा वक्त पर एंड वक्त पर गोल दाग देते हैं। तो ये मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसा कर देते हैं साउथ लायंस के लिए। तो साउथ लायंस को अभी बहुत ही होशियारी के साथ इस खेल को आगे ले जाना है सोरोमिता, क्योंकि अगर अभी थोड़ी सी लापरवाही बरती तो मैच मुश्किल में आ जाएगा। यहाँ पर वेस्ट वाइकिंग्स को देखिए किस तरह से देखिए नैथियल को यहाँ पर अच्छी हेडर की कोशिश, बॉल बाहर जाती हुई, लेकिन बाहर से खींच लिए गेंद को। 15 नंबर के खिलाड़ी है क्रिस एस्टॉम, और यहाँ पर लंबा, जी हाँ, अच्छा डिफेंस बोल सकते हैं इसको, ऊपर खेल सेंटर में। और यहाँ पर बहुत अच्छा क्रिस एस्टॉम को देखिए किस तरह से यहाँ पर बॉल को कैरी करते हुए आगे, अच्छी पास यहाँ पर, क्या इस पास को ले जा पाएंगे क्रिस एस्टॉम एंड तांबे? अरे 18 नंबर की जर्सी यहाँ पर मैदान पर, 18 नंबर साउथ लायंस ने छीन लिया है बॉल को। तो इस तरह का डिफेंस होना चाहिए आपको अगर प्रदर्शन में बने रहना है, क्योंकि तालिका में भी आपको बने रहना है, क्योंकि नॉर्थ पैंथर्स के भी गेम है, वो आपके सही सलामत आपके नीचे है पॉइंट टेबल में अभी भी, क्योंकि उसका गोल डिफरेंस जो है आपसे कम है। तो आपको अच्छा प्रदर्शन करना है आज। यहाँ पर देखिए हेडर की कोशिश, उछाल काम नहीं है। यहाँ पर 11 नंबर नेथनियल ने अच्छी बात, और देखिए यहाँ पर सौरभ यहाँ पर पूरी सौर ऊर्जा के साथ, सोलर पावर है उस बंदे में, सोलर पावर है। सौरभ छा गए मैदान पर। सौरमिता इस खेल का प्रदर्शन देखिए आज, गोलकीपर दोनों ही, आप आकांक्षी को लीजिए, सौरभ को लीजिए, अच्छा प्रदर्शन दोनों तरफ से। बिल्कुल आज सच में ये गेम देखने लायक है, मैच देखने लायक है। सबसे पहले तो दर्शकगण इतना जबरदस्त एनर्जी मैं देख पा रही हूँ ऑडियंस के पास। सभी आप देख सकते हैं स्टेडियम के अगर आसपास आप देखेंगे, सिर्फ ऑडियंस एंड ऑडियंस बाहर से देख रहे हैं, अंदर से देख रहे हैं, कुछ लोग बैठ के देख रहे हैं, कुछ लोग खड़े होके देख रहे हैं, पर वो जो एनर्जी है वो शायद वहां से भी मिल रही है। इतनी बेहतरीन ऑडियंस बहुत कम जगह में हमें मिलती है, कोई झूला झूलते हुए देख रहा है। सो ये अमेजिंग ऑडियंस, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं जो ऑफलाइन हमें देख रहे हैं एंड ऑनलाइन जो हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद आप सभी को। साथ ही साथ ये एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ दोनों ही टीम के गोलकीपर्स की, चौकन्ने हैं, उनकी जो नजर है अच्छी तरह से उन्होंने नजरों में कैद कर लिया है बॉल को कि ये बॉल हटेगी नहीं। जैसा कि सौरभ जी आप देखिए जितनी बार वेस्ट वाइकिंग्स ट्राई कर रहे हैं, सौरभ जी हैं वहां, सीना तान के किया जाओ, मैं आपको गोल करने नहीं दूंगा। तो ये जज्बा रहना चाहिए, और ये जज्बा अगर रहेगा तो
चांसेस है कि साउथ लायंस जीत सकते हैं, पर स्टिल मैं बार बार कह रही हूँ मिथुन जी, वेस्ट वाइकिंग्स को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि वेस्ट वाइकिंग्स ऐसा एक टीम है जो आखिरी 2 मिनट में भी गोल कर सकते हैं। आखिरी 2 मिनटों में भी गोल करने की क्षमता है इस टीम में। सो साउथ लायंस को हल्के में नहीं लेना है, साउथ लायंस को वेस्ट वाइकिंग्स को वो चांस नहीं देना है। वो गोल डिफरेंस बढ़ाकर ही अब वो प्रेशर डाल सकते हैं वेस्ट वाइकिंग्स के ऊपर। तो डेफिनेटली ये रहना चाहिए साउथ लायंस को कि वह ट्राई करे एक और गोल के लिए। और वहीं अगर हम वेस्ट वाइकिंग्स को देखें तो उनमें ये जज्बा है, उनमें ये कॉन्फिडेंस है कि वो या तो टाई कर लेंगे, ना जीतेंगे ना जिताने देंगे। That's what I was saying. That's what I was saying. You know, the South Lions really looking strong today. I don't know how, but West Vikings, even if they have been doing really great for so far, today they seems to be a little weak, you know, in the gameplay, and the defense out there seems to be weaker than the previous game, and so. You know, the midfielders of the West Vikings really need to work harder and pass the ball to the left wing and the right wing over there. And Nathaniel, of course, is doing great. And this could be a goal. Let's see what happens. But again, missed the opportunity. And so you see so much of opportunity missed by the West Vikings today. I think they might be regretting this. I don't know what will happen at the end of the game. But you see, again, this can be a dangerous situation for the West Vikings. You know, they're not really alert of what the ball, where the ball is on. And so, you know, you have to really look into the ball, where the balls are going, and how they've been passed. I think men need to, you know, really communicate better so that, you know, they have a better passing between the players. And, you know, short passes, I guess, would really work better at this point of time. And so, again, it's a handball called by the referee. And so, yeah, and now you see. And now you see this can be another opportunity for the West Vikings. But needless to say that the West Vikings really pushing hard and trying their best to be able to, you know, score the next goal and come up with 2 equal to each other. Right now the South Lions scoring at least 2 and West Vikings 1. And so they really need to push harder this time. And let's see what happens here. And ahead, oh no. And they really couldn't make the score. And so, South Lions versus West Vikings. Belacan at the tournament of Belacan at the West Vikings actually they were borok pressure with South Lions the West Vikings the final Belake tough situation of time 65 minutes pass and Taibisi Jorakarika. So Aban Bagino team table Karakama tonight or rotation high referee signal. Yellow card, red card. So altogether, it's an awesome game played by both the teams. Nicely performing, and what a performance by both the teams so far. Beautifully shot again, saved by Sorov. Sorov today is doing a tremendous job on the part of the South Lions. Awesome to see the way he's been so active. And this is the replay out here. How the ball has been shot, and unfortunately the goal did not happen. And so, replay shoot Belacan at the play in or tournament of Borok Mandai Stadium. Belake Mandai Stadium of Borok Kuplung Kaitini Nailemani Sini Boron Division Belake Calm sportsmanship Nuzago Tai football lovers Asuna Bangonism Kakayo. Open Vicentino, table Katal players of Kakayo or tournament on Nai Borok, they were inspiring Tai TTAADC Hapan Vicentica. Omai as a tournament, Belake, Sini Boron Bagi, Belake Kapalham. Sort of Tajan High or actively taking part in Belake Nights of Playboy actively participate and
Bini gameplay nunggu no tini ni je players of belai ke khathang sajak ang khakhayo. एक बात तो माननी पड़ेगी मिल्टन जी एवं मिथुन जी कि अभी फिलहाल इस मोमेंट में पूरा गेम टिका हुआ है एक गोल पर। अगर ये गोल साउथ लायंस ले लेते हैं तो वो बढ़ोतरी ले लेंगे और एक अच्छा गोल डिफरेंस दे देंगे वेस्ट वाइकिंग्स को। अगर ये गोल वेस्ट वाइकिंग्स ले लेते हैं तो डेफिनेटली टाई हो जाएगा, ना वो जीतेंगे ना जीतने देंगे। वहीं साउथ लायंस अगर अभी चाहें तो वो भी सेम स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं कि वह अगर गोल नहीं ले पा रहे हैं तो अपना डिफेंस इतना स्ट्रांग रखें, जिसमें ऑलरेडी सौरभ जी अपना भरपूर प्रदर्शन दे रहे हैं। वह डिफेंस इतना स्ट्रांग रखें कि हो ही ना वो गोल। तो लगभग 15 मिनट्स और बचे हैं, लगभग सिर्फ और 15 मिनट्स बचे हैं, 15 to 14 मिनट्स। पर इन कुछ मिनटों में क्या ये गेम पूरा चेंज होगा, ये एक गोल बताएगा। तो अब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है ये गेम, क्यों मिथुन जी? जी बिल्कुल, मौका देखिए, सौरभ छाए हुए हैं हर मैच में। हर किसी की निगाह अगर किसी पर है वो सौरभ त्रिपुरा पर है, क्योंकि इस खिलाड़ी ने बहुत अच्छा आनंद सबको दिया है और किस तरह का एक गोलकीपर में अहमियत होती है वो पूरी दिखाई है सौरभ ने। अच्छी 0-1 जो उन्होंने अपने लगा रखी है पीछे जर्सी पर, वो काबिले तारीफ नंबर 1 है वो। और यहाँ पर देखिए नेथनियल किस तरह से कोशिश कर रहे हैं, वेस्ट विकिंग्स जिस तरह की कोशिश कर रहे हैं। और ये बॉल देखिए आगे टी बॉक्स के अंदर, और ये क्या मौका, पैर पे लग गई। क्या यहाँ कुछ होगा? पेनल्टी, शायद यहाँ पर पेनल्टी मिल गई है। शिपोयोली चक्रवर्ती का ये डिसीजन है और मैट टीम वहां पर फर्स्ट एड जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि काफी चोटिल है, क्योंकि यहाँ पर घास नहीं थी इस जगह पर और उन्हें चोट की आशंका है। देखिए इस तरह से वो ऐसे भरोसेमंद खिलाड़ी है, सैमुअल, नेथनियल, क्रिस एस्टॉम, जैम, टेम्बो, बिलास डेबोर्मा, तो इन पर आपकी नजर रहेगी। और उनमें से कोई भी खिलाड़ी अगर चोटिल होते हैं तो मस्त रिप्ले देखिए आप जो हमारे ऑनलाइन देख रहे हैं हमें, देखिए किस तरह से सेव किया उन्होंने। लेकिन अच्छी कोशिश यहाँ पर, अच्छे आगे बढ़े थे वो। लेकिन आप देखना है सौरभ किस तरह से अपनी सौर ऊर्जा का प्रदर्शन यहाँ पर करती है, क्योंकि मिल्टन जी ये अगर ये गोल सेव कर देते हैं, क्योंकि मुश्किल होता है इसको। Absolutely, because at this point of time, if Saurav actually saves the goal, then he is the man of this match. Samuel kick करेंगे मिल्टन जी। And if Samuel is able to score this goal, then it is an opportunity. Oh yes! He is a hero man, hero। आज का जो हीरो है वो सौरभ है। Saurav Tripura really doing a tremendous job on the part of the South Lions. What a match by this man, and he should be appreciated for what he's been doing so far. फिर से एक बार साबित कर दिया सौरभ त्रिपुरा ने कि क्यों वो इतने अच्छे गोलकीपर साबित हुए हैं। अगर पूरे खेल का, पूरे टूर्नामेंट का लेखा जोखा अगर आप उठा के देख ले तो सौरभ 1 man आर्मी है अपने प्लेयर के लिए। He's been saving so much of goal today, and what an unfortunate for the West Vikings so far. They've had opportunities but unable to actually make their scores. Again, let's see the replay of the shot that has been shot here, and you see how Saurav actually saved the ball. Such a wonderful gameplay by Saurav. And what a dive it was, and so it's tremendously appreciable for what he's been doing. सैमुअल जैसे खिलाड़ी, मिल्टन जी, सैमुअल जैसे खिलाड़ी का गोल रोकना बहुत मुश्किल। Yes, and so Samuel really tried his best. I wish if he could, actually push the ball on the other side of the goalkeeper. But Saurav Tripura really very tactfully tackled the ball and saved the goal, and that was a very precious goal for the West Vikings. Luckily saved, and the West Vikings had bad luck, so to say, so far, and not being able to score a goal. So I think overall the South Lions doing really beautiful job. Now again it is to see, luckily again the goalkeeper came, saved the ball for them, and yes,
the players out there, and I don't know why, but the West Vikings not being able to save the ball so well, and I think they need to do really a good job. And so just number 11 doing his part, trying to save the ball from the hands of the South Lions. But yes, such a wonderful tackle, tactfully done, and it's sent out. It's throw-in for the. Again, let's see the replay of the saving of the penalty kick out there. Such a lovely save by Saurav Tripura. I think he is the kind of man that people are looking for, and probably he will be hired in many other games as well. This is what we can say as of now. Yes, again a nice save by the West Vikings. Tackled the ball and saved it. Soromita, what do you have to say? सर मैं चकित हूँ, इतनी ज्यादा चकित कि मेरी बोलती बंद हो गई है। इतना बेहतरीन प्रदर्शन सौरभ जी के द्वारा, इतना बेहतरीन सेव उनके द्वारा, इतने बार, एक बार नहीं इतने बार। और अगर मैं बात करूं वेस्ट वाइकिंग्स की, तो गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। जो मैं बार बार बोल रही हूँ आपको कि गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। वेस्ट वाइकिंग्स यू आर डूइंग ग्रेट, पर आपका जो टारगेट है वो आपको सेटल रखना है। अभी इस मैच में सेकेंड हाफ में लगभग कितने बार ऐसा हो गया है कि वेस्ट वाइकिंग्स अपना बेहतरीन दे रहे हैं, तो हमें उनको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि उनका जितने बार भी अभी इस सेकेंड हाफ में लगभग ये जो बॉल है ये मैक्सिमम टाइम वेस्ट वाइकिंग्स के पैरों के पैरों से ही पास हुआ गया है। साउथ लायंस अब शायद सही तरह से इसका अपने पैरों का, अपने जो जज्बे का, अपने टीम वर्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अभी उनको इस्तेमाल करना है, क्योंकि आखिरी कुछ क्षण बचे हैं। आप जीत सकते हैं आज का ये मैच अगर ये आखिरी मिनटों को आपने काम में लगाया तो, क्योंकि लगभग अभी सिर्फ 8 से 10 मिनट बचे हैं। और इन मिनटों में अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप ये गेम हारे, तो आप गोल नहीं कीजिए, नो प्रॉब्लम, आप गोल मत कीजिए, पर आप गोल होने भी मत दीजिए, क्योंकि एक गोल और ये टाई रहेगा। और वेस्ट वाइकिंग्स ने एक और गोल करके एक और पॉइंट बनाकर अपना जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स टेबल में फिर से बढ़ोतरी कर ली है। उनका भी पॉइंट्स अगर देखें हम तो टोटल पॉइंट उनका रहेगा 8, वहीं साउथ लायंस का इस मैच के बाद रहेगा 6। तो अब भी आप पीछे हैं, आपको अभी गोल करने में ध्यान देना है। अगर गोल नहीं हो रहा और आज आपको जीतना है, तो आपको पूरी तरह से देखना है कि आप गोल होने भी ना दे, और क्योंकि और गोल हुआ तो डेफिनेटली आप एक दे दे रहे, एक मौका दे दे रहे हैं वेस्ट वाइकिंग्स को। मिथुन जी, आज क्या लगता है, मतलब मुझे लगता है वेस्ट वाइकिंग्स पूरी तरह से ट्राई करेंगे कि वह टाई एटलीस्ट कर ले, जीतने ना दे। सौरमिता देखिए जिस तरह से साउथ लायंस के पॉइंट्स हैं, अगर उन्होंने इस दावेदारी को अच्छे पॉइंट से जीत लिया तो एक अंक तालिका में वो टक्कर के हो जाएंगे वेस्ट वाइकिंग्स के। और फिर उसका एक मैच है ओनुकुटी का। अगर इस तरह से खेल चलता रहा तो वेस्ट वाइकिंग्स के लिए भी थोड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि वहां पर पॉइंट्स टेबल में अगर आप बराबर में चले जाएंगे, क्योंकि गोल डिफरेंस भी देखा जाता है इसमें, तो उसमें मुश्किलात आ सकती हैं। लेकिन हम अभी जैसे 5 मिनट शेष बचे हैं खेल के, 5 मिनट्स लेफ्ट। अगर देखते हैं इस 5 मिनट में पूरे खेल में वेस्ट वाइकिंग्स की माना जाता है इसी चीज के लिए, आखिर में वो अपना पूरा ऊर्जा जो है खेल में दिखाते हैं। और देखिए किस तरह से 15 नंबर के हैप्पी ऊंचाई के पास जाएगी क्या गेंद, हैप्पी ऊंचाई वहां पर मौजूद है। हैप्पी ऊंचाई अच्छी कैरी नहीं कर पाए वहां से, अगर गोल ले लेते ना तो खतरा बन सकता था। तो इस तरह से अगर हम जानते हैं कि आज का खेल सबसे रोमांचकर मानदा स्टेडियम में हो रहा है, जो अभी लंबा शॉट यहां पर बाहर मोई मौका नहीं वेस्ट वाइकिंग्स के लिए। पर सौरमिता, मिथुन जी आप देखिए जरा सौरभ जी को, जैसे सौरमिता के नाम से ही सौरभ बनता है, सौरभ जी। हाँ, तो सौरभ जी आज मतलब एक अलग मूड में है। सौरभ उस जगह से हिले ही नहीं, क्योंकि उनको पता था बॉल जाएगा ही नहीं गोल में, गोल होगा ही नहीं, तो वो हिले भी नहीं। मिल्टन जी, आज सौरभ का ये जो जज्बा है वो देखकर मैं बहुत शॉक्ड हूँ, और मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि इतना बेहतरीन वह कर रहे हैं। वही वेस्ट वाइकिंग्स को बार बार मैं बोल रही हूँ, वेस्ट वाइकिंग्स जाने ही जाते हैं उनके लास्ट मिनट के खेल के लिए। तो लास्ट मिनटों में अगर उन्होंने एक गोल कर दिया तो टाई हो जाएगा। सौरमिता देखिए राशियों का भी इधर उधर होता है,
ठीक है, तो राशियों का भी इधर उधर होता है मिल्टन जी। सौरभिता और सौरभ ठीक है, लेकिन राशियों का हेर फेर हो गया है। उनका बृहस्पति भारी है, आपका बृहस्पति कमजोर है आज, तो वो आज तगड़े हैं मैदान पर। मिल्टन जी। Yes, and so you know what, it's only 4 minutes left for the gameplay, and the players on the part of the West Vikings really need to show aggressive gameplay today, and otherwise it's going to be the South Lions that will be winning the game for the day. And Mandai Stadium fully packed today, really awesome game, and over there again, nice pass over there, let's see what happens, and again missed the opportunity. I don't know, but nice try on the part of the West Vikings, but every now and then they've been missing the opportunity, and I think this is not happening today. But again, this is a throw in for the West Vikings. And so, nicely tackle over there. Let's see what happens again. The West Vikings taking the opportunity. Let's see. Probably, this can be a dangerous situation for both the team. And in the last few minutes, probably the West Vikings may be able to score. But again, it's not letting us sit down on the chair. It's taking us, stand up and commentate on the ground. It's so beautiful match today. And I don't know what's going to happen. But yes, the South Lions looking really, really strong in the ground, taking all the opportunity. And yes, and so even Mithun and Sorumita both, could not actually sit on the chair, but stood up and started commentating on the ground at Mandai Stadium today. मिल्टन जी बिल्कुल, हैप्पी ऊंचाई के पास अगर अभी आप मौका दे देंगे, हैप्पी ऊंचाई देखिए आगे बढ़ रहे हैं हैप्पी ऊंचाई, और हैप्पी ऊंचाई के पैर में गेंद है, अगर ये लेके निकल जाते हैं तो एक गोल और है। देखिए अच्छी पास यहाँ पर कैरी करके आगे लेके जा रहे हैं, और इनको रोकते हुए डिफेंस देखिए, लेकिन मौका नहीं, और ये मौका बनते बनते रह गया। नेथनियल मौजूद है मिल्टन जी, मौका। What an opportunity again for the South Lions. But it's really sad that the West Vikings could not make the next score and become 2 equal. But, South Lions scoring 2 and West Vikings 1. And only another 4 minutes extension is given on the ground. And so let's see what happens. Both the teams doing so great on the ground today at Mandai Stadium. जी बिल्कुल, खेल का जो मजा है देखिए, पूरे मैदान में खामोशी सी छा गई है। ऐसा लगता है कोई बड़ा कहर बरपने वाला है, बर्फ थम सी गई है, यूएसए जैसी, कनाडा जैसी ऐसी बर्फ कि पता ही नहीं चल रहा है कि अभी क्या होने वाला है। हालात बदलेंगे या बदलाए जाएंगे। हैप्पी ऊंचाई को यहाँ पास मिलने चाहिए, बिल्कुल अच्छी कैरी करते हुए यहाँ पर अच्छी पास 13 नंबर के जर्सी को साउथ लायंस, क्या साउथ लायंस वो पास कर पाएंगे हैप्पी ऊंचाई तक? सेंटर पे खड़े डी बॉक्स के, अगर वो कर देते हैं, शेष समय बचा है 3 मिनट लगभग, इस 3 मिनट में क्या काया पलट सकती है मिल्टन जी? There can be changes in the gameplay, but it should have been like the West Vikings actually changed the player in the last minute so that they have a new energy in the gameplay and make a new strategy of the game. But no, that's not happening today, and so probably the West Vikings will have to go 1-0, 2-0, and 0-1. But let's see what happens. Another 2 minutes or so is remaining, and the team really needs to work hard. But see, what an unfortunate again is sent out. I guess ये आखिरी 2 मिनट शायद और कोई चेंजेस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि साउथ लायंस अभी एकदम लायंस की तरह कह रहे हैं, अभी ये दहाड़ रहे हैं शेर की तरह, और शायद चेंजेस अभी ना आ पाए। मैक्सिमम चांसेस है कि साउथ लायंस जीत सकते हैं, पर फिर भी वेस्ट वाइकिंग्स ही हैं, वे ट्राई जरूर करेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और आखिरी मिनट में अगर गोल हो गया तो ये इतिहास रच देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने टारगेट सेट किया था, पर टारगेट सही जगह नहीं गया। देखिए निशाना चूक गए, अभी वो निशाना सही जगह बैठता तो मामला गड़बड़ा जाता। यहाँ पर साउथ लायंस ने जो धैर्य दिखाया अपना खेल का, वो काबिले तारीफ है, क्योंकि चंद मिनटों का खेल है। कभी भी लंबी सिटी शिबू ज्योति चक्रवर्ती के सिटी से आ सकती है, क्योंकि वो घड़ी को देखते हुए कि कितनी देर और खेल बचा हुआ है, लेकिन उसी क्षण में वो क्षण को वो खोना नहीं चाहते। वो भी बोल रहे हैं प्लेयर्स को, लेट्स प्ले, क्योंकि वक्त थम सा गया है यहाँ पर,
और देखिए एक लंबा शॉट होगा यहाँ पर, ये शायद मान सकते हैं कि गोल पोस्ट से आखिरी शॉट भी हो सकता है अगर बीच में ज्यादा देर खेल हुआ। देखना है कौन पहले डी बॉक्स में पहुंच के गोल अपना करता है। समय की अहमियत तब तक पता नहीं चलती है जब तक समय हाथ से निकल ना रहा हो। अभी समय है कि आप गोल करके दिखा दें, पर यहाँ फिर से साउथ लायंस के पास ही है बॉल और शायद ये Again, the South Lions really falling heavy on the West Vikings today, and this is another goal for the South Lions. South Lions, what a match today, and really need to work harder. But the South Lions falling heavy, really heavy on the West Vikings. West Vikings, better luck next time, so to say, because that's only another a minute or so, or probably another few seconds, and the match is going to get over. रफ्तार देखिए वेस्ट विकिंग्स की, क्योंकि उनके अंदर अभी उनको मालूम है चंद लम्हों का खेल है, उनको अगर करना है तो इसी बीच उनको गोल दागने होंगे। लेकिन जिस तरह से हैप्पी ऊंचाई ने आज अपने उच्च कोटि का प्रदर्शन यहाँ पर दिखाया है, साउथ लायंस ने आज अपने पॉइंट्स टेबल पे वो जगह बना ली। अच्छी कैरी यहाँ पर फाउल और एक शॉट मिलेगा यहाँ पर। देखिए जिस तरह से आज का खेल हुआ है वो सारे मानदाई के लोगों को बिल्कुल दिल के करीब जाके लगी है कि ऐसा खेल शायद ही उन्होंने देखा हो, क्योंकि बहुत सारे मैचेस थे। ये स्टेट लेवल का मैच है और हर एक डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, गिने चुने खिलाड़ी हैं और बेस्ट प्लेयर्स हैं यहाँ पर। तारीफों की बौछार आप किसी के लिए भी कर दीजिए कम पड़ जाएगी, एक से एक प्लेयर है यहाँ पर और हमारे सब यहाँ के लोकल प्लेयर्स खेल रहे हैं। देखिए अच्छी पास यहाँ पर, अभी क्या मौका बन सकता है? नहीं, सौरभ मिल्टन जी। Yes, and so this day is the day. Today is the day for the South Lions. They have been doing such a tremendous gameplay in Mandai Stadium, and Mandai audiences are really awesome. Everybody is standing up on the feet and cheering up for the team. It was a game. I must say it was an amazing match. ऐसा मैच बहुत कम जगह में देखने को मिलता है, एंड ऐसे मैचेस, ऐसे प्लेयर्स बहुत कम जगह में देखने को मिलते हैं जो दोनों ही टीम टक्कर वाले हो। एंड आज का ये जो मैच है ये जरूर सभी को याद रहेगा, क्योंकि आज के इस मैच में आखिरी मिनट तक साउथ लायंस ने अपना बेहतरीन दिया एंड वेस्ट वाइकिंग्स ने अपना बेस्ट दिया। तो मान सकते हैं कि आज का ये जो गेम था ये सच में एक गेम था, एक सच में एक मैच था। और अभी तक आई एम शॉक्ड कि वेस्ट वाइकिंग्स अभी तक अपना जो कॉन्फिडेंस है उनका लो नहीं हुआ है, अभी तक वे ट्राई कर रहे हैं। सौरमिता देखिए, अगर आप बोल रहे हैं कि उनका बैड लक या कुछ भी बोल रहे वेस्ट विकिंग्स का, लेकिन मैं ये कहूंगा कि उन्होंने अपना वो खेल नहीं दर्शा पाए। लेकिन यहां पर 3-1 की बढ़त लेते हुए चेयरिंग देखिए किस तरह से हो रहा है मैदान पर। अपने टीम के प्रदर्शन से खुश साउथ लायंस के जो दर्शक है वो पूरा फुल ऑफ एनर्जी, ऐसा बोले पूरा कहर डाल दिया साउथ लायंस ने मिल्टन जी आज। Yes, and so the supporters for the South Lions really happy today, cheering up for the team, and just because they won 3-1. It's so awesome match by the showcase by the South Lions today. सौरभ त्रिपुरा के लिए कुछ बोलिए, जिस तरह का प्रदर्शन था आज उनका। Saurav Tripura really doing a tremendous job today, and the way he saved the ball from the strikes that's been shot by the West Vikings, really awesome job. जिस तरह से उन्होंने सैमुअल का गोल सेव किया था। Samuel and Nathaniel also tried his best, but somewhere or the other they were not giving enough passes, and so that's how they missed a lot